بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ تو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر تانا زن عیب جو کے لیے ہلاکت ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں، اسے ضرور ہوتامہ میں پھینکا جائے گا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ ہوتامہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچے گی۔ بے شک وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ حافظ عنایت صاحب لاہور تو، بڑا شکریہ۔ میں چودھری صاحب تہاڈا مائک بھی کھلا ہے، چودھری حسنات دا مائک بھی کھلا ہے اور میرا مائک بھی کھلا ہے۔ اے جڑی میٹنگ ہے اج ساڈی 6ویں باقاعدہ کبو برادری دی میٹنگ ہے، جڑی صرف ایک اپنے اس لاک ڈاؤن دے وچ اپنے آپ نو تھوڑا بیزی رکھن واسطے وے، اور برادری دے لوگ ساڈے نال خالد پرویز صاحب امریکہ تو بیٹھے نے، کچھ لوگ آندے نے کچھ جاندے نے، اس لیے ساڈے 21 لوگ ایتھے موجود نے، اور پیچھے اور بھی لوگ حاجی ابراہیم صاحب بھی پیچھوں آ رہے نے، اور لوگ جوائنٹ بھی ہوندے نے چلے بھی جاندے نے۔ تے چوہدری صاحب اے میٹنگ جڑی ہے نا، اے پروگرام اے بنایا کہ ایک بو برادری دا چینل جڑا ہے اے ہر ہفتے ہر بدھ نو، بدھ والے دن ایک دن ہوئے گا، اسی ایدے تے سارے ملان گے، اور ایدے تے پہلی 4-5 میٹنگاں دا مقصد سی کہ کیمرے دے اگے کس طرح بہنا ہے، اسی کس طرح کرنا ہے، ساؤنڈ کس طرح چلنی ہے، تے او دا واسطے ماشاءاللہ ساڑے سارے لوگ اس لئے جس طرح ٹی وی دے بیعید ہے اس طرح بالکل بہندے نے، بڑا اچھے طریقے دے نال اسی امپرومنٹ کیتی ہے۔ آج ساڑے نال نوے دوست بھی آئے نے۔ میں ایک تے ایک میسیج ہے کہ ہر جڑی جتنی ساڑی ہو رہی ہے نا ڈسکس، اس ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور اے ریکارڈنگ جڑی ہے نا میٹنگ ختم ہون تو 2 گھنٹے دے بعد یوٹیوب دے تے چلی جاندی ہے، بلکہ تواڈے واٹس ایپ دے تے لنک آ جاندا ہے، اینو جدوں مرضی ویکھو جو مرضی کرو۔ اور حسنات صاحب تے اینو اپنے کبو ٹی وی دے اتے بھی چڑھا دیندے نے، تے اے انشاءاللہ اے ساڈی کوشش ہے جس طرح چوہدری صاحب آئے نے، اسی طرح ہور ساڈے انجمن کبوان پاکستان دے ہر شہر تو اسی کسے نہ کسے نو لاواں گے اور اپنی میٹنگ نو اگے چلاندے جاواں گے، تاکہ جڑا ساڈا رابطے دا فقدان سی نا او کم ہوئے۔ تے میں چودھری حسنات صاحب نو کہاں گا کہ چودھری صاحب نو باقاعدہ ویلکم کہو، اور تے چودھری صاحب نو پھر اس تو بعد دینے ہیں لوکاں دا انٹروڈکشن، سوال جواب دے اتے ہوئے گا۔ چودھری حسنات احمد کمبو۔ السلام علیکم صاحب، تانوں خوش آمدید کہ تسی اج اس میٹنگ میں تشریف لائے ہو، اور امید کران گے کہ تہاڈیاں جی 6ویں میٹنگ ہے، اس دے نال نال جڑیاں اگلیاں میٹنگاں ہونگیاں اودے وچ بھی تسی رہنمائی کرو اور اودے نال اسی اگے چلدے رہیے۔ جناب چودھری اختر رسول صاحب انجمن کمبوہان پاکستان دے صدر نے، اور الحمدللہ انہوں نے جس طریقے نال کمبو قوم نو ایک جگہ تے جمت کیتا، ایک جگہ تے لے کے آئے نے، اے قابل ستائش ہے، اور قوم ساری انہوں نے سلام پیش کرتی ہے۔ میں چاہواں گا کہ انہوں کا تعارف ماشاءاللہ کافی لمبا ہے اور اسی کافی انہوں نے گل کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے سب تو بڑی گل جڑی ہے وہ اولمپئن نے، اور ہاکی دے ماشاءاللہ چیمپئن رہے نے، اور ہاکی دے نو پوری دنیا چ روشناس کرایا۔ اور وعلیکم السلام جی، میں لنک اور میں
ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖਤਰ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ पार्टिसिपेंट के दरमियान ज़्यादा टाइम ना लइए, तो मैं चाहांगा कि जनाब अख्तर रसूल साहब अपना खिताब करन और कौम नूं दसन कि वो अपना की लाहे अमल तय कर रहे हैं अगला कौम वास्ते। जनाब चौधरी अख्तर रसूल साहब। जी चौधरी साहब ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ। जी अपना तजीम साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये जो वीडियो लिंक सिस्टम जो है उसके ज़रिए अपने बरादरी को से राब्ते का एक सिलसिला बहुत ज़बरदस्त है तो शुरू किया है, तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, ताकि वो उनके जज्बात और ख्यालात एक दूसरे को और हालात ज़िंदगी जिस तरीके से बेहतर हो सकते हैं वो डिस्कस किए जाएं। और मैं ये समझता हूँ कि आज जबकि पूरा मुल्क लॉकडाउन में की सूरत हाल है और घरों के अंदर लोग बैठे बैठे थक जाते हैं, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त राब्ते का सिलसिला है जिससे आपकी एक तो टाइम भी आपका पास होगा, दूसरा आप राब्ते में भी रहेंगे और दूसरी अपनी फीलिंग्स जो है वो एक दूसरे की हासिल कर सकेंगे। तो हमें ना सिर्फ अपने इस टेंस सूरत हाल को बड़ा संजीदगी से लेना है कि ये जो कोरोना है इसका मुकाबला किया जाए, अपने आप को बिल्कुल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ है उसके मुताबिक जो उन्होंने और जो हम समझते हैं कि जो वायरस से किस तरह बचा जा सकता है, अपने आप को कवर रखें और मास्क पहने और हाथ साफ रखें और फिर अल्लाह के ऊपर तकवा रखें। एक तो दुश्मन वो होता है ना ये जिसका पता होता है कि वो आ जाना है, और इस दुश्मन का तो पता ही नहीं है, लिहाजा तकवा तो हमेशा अल्लाह की ज़ात के ऊपर ही रहना चाहिए। बाकी दुनिया की कोशिशें हैं, काविशें हैं, वो करते रहना चाहिए। तो अल्लाह आपका हामी और नासर हो, आपकी औलाद का भी, आपका सबको अल्लाह सलामत रखे। और इसके साथ साथ माह रमज़ान की बरकतें हैं वो भी आपको इस महीने में हासिल है, और ये बहुत बड़ा एजाज़ होता है अल्लाह ताला ने आपको आपकी ज़िंदगी में ये माह रमज़ान की बरकतें अता की हैं। वरना वो तो कई लोग ऐसे हैं जो एक दिन पहले फौत हो गए हैं। अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि उसने हमें ये आज 5वां रोज़ा भी अता किया है, तो ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। तो इस माह रमज़ान की सारी बरकतें हासिल करें, अपने आप को पाकीज़गी में रखें, अल्लाह ताला को याद रखें और एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे का एहतराम करें। तो मेरा ख्याल है कि यही एक सिलसिला है जो हम इकट्ठे बैठ के मुशावरत के साथ हम किसी भी बात को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। जी जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। मैं चौधरी हसनात कंबोज साहब, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1 ਬਾਈ 1 ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਹਸਨਾਤ ਕੰਬੋ। जी जनाब, सब तो पहला बहुत शुक्रिया जी एक बारी फिर जनाब अख्तर रसूल साहब का कि उन्होंने बड़िया अच्छी करंट अफेयर से बहुत अच्छी गल की थी। हुण असी जिहड़े दोस्त अहबाब ने वो गल करनगे बरादरी के बारे में, और मैं सब तो पहला दावत देंगा हाफिज अनायतुल्ला साहब को कि वो अपना टेलीफोन नंबर दसन और थोड़ा जिहा तारफ तो बाद फिर चौधरी साहब नाल मुखातब हो जाए। जनाब हाफिज अनायतुल्ला कंबो, शाहजमाल लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चौधरी हसनात साहब, तजीम साहब फॉर इन्वाइटिंग। आज मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे सीनियर अकाबरीन भी हम में शामिल हैं। तो हम तो प्रैक्टिस करते रहे हैं 5-6 दिन, तो तारफ भी होता रहा है। तो मैं दोबारा तारफ करा देता हूँ। शाहजमाल कॉलोनी लाहौर से मेरा ताल्लुक है। तो बिजनेस मेरा मेडिसिन का है, होलसेल सप्लाई का।
تو میرا سوال چودھری صاحب سے یہی ہے، جو ہم فیڈ بیک پچھلا ان کو شاید ملا بھی ہوگا، ظاہر دیکھا ہوگا انہوں نے، کہ ہم ایک تو یونائٹ ہونے کے لیے مختلف آپشن پہ ڈسکس کرتے کہ کیسے ہم کس طرح پتہ چلے کہ ہم کتنی تعداد میں موجود ہیں پاکستان میں، پنجاب میں، سندھ میں، سارے صوبوں میں. تو اس کے بعد پھر جب یہ پتہ چل جائے کہ ہماری کوانٹٹی کتنی ہے، پھر اس میں کوالٹی کے لوگ جو ہیں وہ ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور وہ جو کوالٹی کے لوگ ہیں وہ آگے پھر بتاتے ہیں نیچے کہ کوالٹی کس طرح ہم نے اپنی بہتر کرنی ہے. جس طرح ماشاءاللہ چودھری صاحب کا نام پوری دنیا میں ایک فگر کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں، اور ورلڈ اب صرف 1 گینس منٹ بک میں آف ورلڈ سوال ریکارڈ میں بھی. کرنا ہے، بس جی 1 منٹ میں سوال کریں. ہاں بس چودھری صاحب سوال میرا یہی ہے. جی سوال آپ کا میں نے سن لیا ہے. میں ابھی جواب تسلیم صاحب ابھی جواب دوں اس کا یا ابھی کیا ساتھ ساتھ جواب دیتے جائیں تاکہ سب کی باری آئے. اچھا میں جواب دیتا ہوں. بڑی اچھی بات کی ہے کہ ایک ڈیٹا جو ہے وہ مرتب ہونا چاہیے کہ سندھ میں، پنجاب میں اور اسلام آباد میں دوسری جگہ پہ کتنا ایک ہماری برادری کے دوست موجود ہیں. اس کے لیے آپ کو جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے کوئی 1 سال سے بڑی ایکٹیو ذمہ داری کی ہوئی ہے، اور پنجاب میں کچھ 26 اضلاع ایسے ہیں جس کا ہم نے وہ تنظیم سازی کی ہے. یقیناً کسی تنظیم سازی کو مرتب کرتے ٹائم لگتا ہے، اور اللہ کی مہربانی سے پنجاب میں ہم نے 26 اضلاع کی تنظیم جو ہے وہ مکمل کروائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ڈیٹا جو ہے وہ بھی مرتب کر رہے ہیں. تو سندھ کی جو صورتحال جو ہمیشہ سے اچھی رہی ہے، اور سندھ کے لوگ بڑے یونائٹ ہیں، اور یقیناً یونائٹ ہونے سے ہی ان کی بھی عزت ہے، ہماری بھی عزت ہے. پنجاب کے اندر بھی انشاءاللہ صورتحال کافی بہتر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلے چند مہینوں میں جب یہ سارے کام مکمل ہوں گے تو ایک بھرپور ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوگا. اور جب ڈیٹا مکمل ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کو بالکل وہ آپ کو بتائیں گے کہ سندھ میں ہماری کیا تعداد ہے، پنجاب میں ہماری کیا تعداد ہے. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ وائز بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے یہ باتیں شیئر کریں. بہت شکریہ. دعوت دوں گا جناب محمد سلیم کمبو صاحب کراچی سے، وہ اپنا تعارف کریں، ٹیلی فون نمبر اور اس سوال کریں. جناب سلیم کمبو صاحب کراچی. محمد سلیم جموں کمبو کراچی. پیدائش میری ضلع بدین غلارچی کی ہے. فی الحال 28 سال سے کراچی میں ہیں. کمبو کنسٹرکشن اور سلیم ٹریڈرز کے نام سے میرا کنسٹرکشن کا بزنس ہے، اور بیسیکلی ذمہ دار ہوں. ایگریکلچر سے بھی تعلق ہے. بس ہماری تو چودھری صاحب سے کیا ہم نے سوال کرنا ہے. ان کی شفقتیں ہیں، اللہ پاک ان کو زندگی دے اور اللہ پاک تندرستی دے. یہ شفقت کی نگاہ رکھیں ہم پہ. ہم تو ابھی اسٹوڈنٹ ہیں اس معاملے میں، کمبو کاز کے اسٹوڈنٹ ہیں ہم تو. اور اللہ پاک ان بڑوں کو ہمارے سر پہ قائم و دائم رکھے، ان سے ہم سیکھتے رہیں اور ان کے کہنے پہ ہم آگے چلتے رہیں. تو کوشش تو یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ برکت بھی دے گا اور آخرت بھی سنورے گی، دونوں ہی کام مل. بہت شکریہ سلیم صاحب. چوہی صاحب کوئی جواب دینا چاہو. جی سلیم صاحب نے تو ہمیشہ محبت کی باتیں کی ہیں، اور سلیم صاحب ہمارے سندھ کے بڑے ایکٹیو اللہ کی مہربانی سے کمبو ہیں، اور یہ ہمارے دل کا اور ہماری آنکھوں کا نور ہے. اور ہمارے جو ہے جو سینے پر تمغے سجے ہیں ان میں سلیم بھی ایک خوبصورت نام ہے. اور جس طرح یہ سندھ کے اندر ایک کام کرتے رہتے ہیں، اور وہ کام جو ہے وہ کر کے آپ بھی گئے ہیں سندھ. تسلیم صاحب آپ نے بھی وہ کئی مرتبہ ان کا سالانہ اجتماع دیکھا ہے. اور خواتین کے اندر خاص طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں
میں اپریشیشن دینا چاہتا ہوں خواتین کو. سندھ کی خواتین جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں, اور نہ صرف ایکٹیو ہیں بلکہ آ کے اسٹیج کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کرنا, اور یہ پڑھے لکھے لوگ بھی وہاں موجود ہیں. مجھے انتہائی خوشی ہے کہ پاکستان کے اندر ہماری جو برادری ہے اور سندھ کے اندر خاص طور پہ وہ ایک مضبوط قلعہ ہے ہمارا. باجی باجی حسنات بہت صاحب. شکریہ جی. اب میں دعوت دوں گا پنجاب یعنی وفاق سے جناب منور اقبال کمبوج صاحب, جناب اسلام آباد سے منور اقبال کمبوج صاحب, وہ پارس اور اس کے بعد چوہدری صاحب سے کوئی بات کریں. منور صاحب. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਯਕੀਨਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਯੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਨੋਜ਼ ਵੈਲ. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਨਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ. ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਦੈਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ. ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ 'ਚ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘਰਾਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 16-17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ. ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ. ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ. ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ. ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੋ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਸ਼ਨਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਤਗੋ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਈ ਹਾਸਲ ਹੋਈ. ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦਿਆਂਗੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਫਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ. ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਹੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ. ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੰਜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮੋ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਨੇ. ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਦੋਂ ਅਫੀਸਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ. ਉਹਦੀਆਂ ਮਸਲਹਤਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਬੋਡ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਅਫੀਸਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਬੀ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਮਸਲਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਤੇ ਬਸ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. चौधरी अख्तर सूद साहब. جی منور اقبال کمبوج صاحب. جی منور اقبال صاحب. جی چوہدری صاحب بولو. جی چوہدری صاحب. منور اقبال صاحب جناب ایک تو اسلام آباد میں جو ان کا مورچہ ہے وہ ہمارے لیے بہت عام ہے اور اسلام آباد ویسے بھی پاکستان کا ایک بہت بڑا ایسا شہر ہے جس سے ساری حکومتیں قائم ادھر ہی ہوتی ہیں اور وہ سارا ایک آپ جانتے ہیں اس کی اہمیت کا. تو اسی طرح اگر اسلام آباد کی جو کمبو برادری ہے وہ اکٹھی ہو کے ایک سسٹم کے تحت وہ بھی اپنا جس طرح شیخو پورے میں آئے تھے انہوں نے دیکھا شیخو پورے والے کس طرح محبت سے اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہاں اجتماع ہوتے ہیں, کئی مرتبہ انہوں نے کر کے دکھایا. اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام آباد بھی آؤں اور آ کے ان کے اجتماع میں بالمشافہ لوگوں سے ملاقات ہو, براہ راست رابطے میں رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہماری جو فیلنگز ہیں وہ شیئر کی جائیں.
वो दूसरी बात ये है कि जो बात इन्होंने की है ये बड़ी अहम बात है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े आला अफसरान हैं, वो हेजिटेट करते हैं बरादरी की मीटिंग्स में आने में, लेकिन मैं समझता हूँ उनको बाकायदा तौर पे अभी क्योंकि डेटा भी उनका कलेक्शन हो रहा है, उनको बाकायदा एक अच्छे तरीके से बुलाकर बैठाया नहीं गया अभी तक। वो भी इंशाअल्लाह ताला करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये सारे मामले हमारी नोटिस में हैं, इंशाअल्लाह इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। जी असनाद साहब। अब मैं दावत दूंगा। चौधरी साहब ने बात की कोरोना की, तो इस वक्त हमारे कोरोना के साथ लड़ रहे हैं डॉक्टर उस्मान अली कंबोह साहब, जो कि म्यू अस्पताल में इस वक्त जॉब कर रहे हैं और वहाँ इमरजेंसी में उनकी ड्यूटी है। जनाब डॉक्टर उस्मान अली कंबोह साहब फ्रॉम म्यू अस्पताल लाहौर। सलमान जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आपको देख के। जी डॉक्टर साहब मुझे भी बड़ी खुशी है। आप इस वक्त इंग्लिस्तान में ही हैं? नहीं सर, मैं आपको अपना तारुफ करवाता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान कंबोह है। मैंने MBBS किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से, जो कि म्यू हॉस्पिटल के पास है, वहाँ से MBBS किया था। और उसके बाद मैंने जो स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग होती है हमारी, वो म्यू हॉस्पिटल से की। और उसके बाद अब मैंने जो सर्जन की जो डिग्री होती है वो कॉलेज ऑफ फिजिशियन है सर्जन पाकिस्तान से, वहाँ से मैं सर्जन की डिग्री की। और आजकल मैं एज ए कंसल्टेंट सर्जन म्यू हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रहा हूँ। और मेरा तल्लक गुजरांवाला कामों की से है, कामों की के साथ ही गांव है, उधर से मेरा तल्लक है। और आपकी माशाल्लाह तारीफ मैंने, और आपका जो तारुफ है वो आज से 25 साल पहले जब गांव में मैं हॉकी के मैच देखता था। हमारे गांव में हॉकी बड़े शौक से देखी जाती थी। मुझे सारे मैचेस याद हैं, जो शहबाज सीनियर, शहबाज जूनियर, ये शौक हमारे गांव के अंदर बड़ा अच्छे शौक से हॉकी देखी जाती थी। और वहाँ आपका जिक्र माशाल्लाह चलता रहता था हमारे गांव में। बड़ा अच्छा, हमारी कंबोह बरादरी बड़ी डोमिनेंट बरादरी है हमारे गांव में, तो वहाँ ये मैचेस का सिलसिला चलता था। तो ये तो सर मेरा तारुफ था। और आपको देख के आपको सुना तो जिस तरह पहले मैंने बताया कि बड़ी दफ़ा सुना है आपका तारुफ, आपका माशाल्लाह सोशल आपकी एक्टिविटीज़ और आपकी कंबोह बरादरी के लिए आपकी एक्टिविटीज़, और आपका जो बल्कि पूरे कंट्रीज़ में जो आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, दैट इज़ अप्रिशिएबल। और बाकी जो मेरा मैसेज है सर, आपकी गाइडेंस ही हमें चाहिए होगी, आपकी सपोर्ट ही चाहिए होगी। और फ्यूचर में जो मेरे लिए जो भी आप जिम्मेदारी, जो भी रिस्पॉन्स। जी चौधरी साहब आगे चले बस। जी डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीलिंग्स। मुझे बड़ी खुशी है कि आप जैसे नौजवान जो हैं वो और पढ़े लिखे और एक रुतबे में ऊपर फाइज, उनके दिल में मोहब्बत अंजुमन पाकिस्तान कंबोहान मौजूद है, और ये बड़ी अच्छी बात होती है। यकीनन अपना जो खून होता है वो सबको प्यारा होता है। तो आप लोग या हम लोग जिधर भी होंगे एक दूसरे के लिए हमारी फीलिंग्स बड़ी मोहब्बत वाली होंगी। तो इंशाल्लाह आपसे तो आज पहली मरतबा बात हो रही है, तो किसी वक्त ये हालात ठीक होते हैं तो आप तो लाहौर में हैं, तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात बड़ी आसानी से होगी। तो आएंगे बैठेंगे तो इंशाल्लाह मजीद आपके लिए ड्यूटियां भी लगाएंगे, और आपसे एक जितना काम हो सकेगा बरादरी के हवाले से वो इंशाल्लाह हम आपसे लेंगे। अब मैं दावत दूंगा मोहम्मद नसीर कंबोह एडवोकेट, वो चौधरी साहब से बात करेंगे। जनाब नसीर एडवोकेट साहब। जी अस्सलाम वालेकुम हसनात भाई, बहुत शुक्रिया। मैं एडवोकेट नसीर कंबोह, मैं लाहौर हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਨੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਚਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹਸਨਾਤ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲ ਮੁਸ਼ਾਫਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਓਲੰਪੀਅਨ ਵੀ ਨੇ ਹਾਕੀ ਦੇ, ਕੰਬੋਹ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਾਬ ਦਾ ਤਾਰਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਬੋਹ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸੀ ਜਨਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਤਾਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਸਨਾਤ ਭਾਈ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਹੈ ਨਸੀਰ ਕੰਬੋ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਸਬਾ ਹਾਥੀਆਣਾ ਕੰਬੋ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਸਰ ਮੈਂ ਔਰ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੰਬੋ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਔਰ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਸੈਟਅਪ ਜਨਾਬ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸਰ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਕਸੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਰਲੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਔਰ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਫਾਲਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਨੇ। बहुत शुक्रिया जी। और मैं दावत दियांगा जनाब चौधरी अख्तर सूद साहब के अपने। जी, आपने बहुत अहम बात की है एजुकेशन के हवाले से। माशाल्लाह ये बातें तो एक पढ़ा लिखा इंसान जो अल्हम्दुलिल्लाह आप वकील भी हैं और लाहौर में हाई कोर्ट के आप वकील हैं, तो उस लिहाज से आप यकीनन एक पढ़ी लिखी बात करेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने जो एजुकेशन की बात की है, असल बेस यही है कि जब तक इल्म के पास ही ताकत है और जो इल्म है उसके पास ही असल बात होती है। इट इज़ द नॉलेज विच हैज पावर। और वो ये कौम वो कभी हार नहीं सकती जिसके नौजवान बच्चे जो हैं वो तालीम से आरास्ता है। तो मेरी तो हमेशा हर जलसे में, हर मीटिंग में अपने बरादरी के दोस्तों को ये बात कही जाती है कि हमें अपने उनको हदायत दी जाती है कि बच्चे गिरदोनवा के जो हमारे गलियों मोहल्लों में मौजूद हैं, जिनके वसाइल नहीं हैं, उनकी भी आप मदद करें और इस तरह उनको भी आप पढ़ाएं लिखाएं, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। शायद अल्लाह ताला इससे हमारी कौम को एक वक्त आए कि वो हमारी कौम जो है वो सबसे ऊपर चली जाए और तालीम का जरिया ही बेहतरीन है। वाह जी वाह। जी मैं दावत दियांगा खालिद परवेज कंबो फ्रॉम अमेरिका के वो अपने हिंदी गल हो रही है कि क्यों ना एक पढ़े लिखे बंदे दावत दी जाए जो अपना ख्यालात का इज़हार करें। जनाब खालिद परवेज कंबो अमेरिका। अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले तो सारिਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੌਧਰੀ ਅਖਤਰ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਖਾਲਿਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ MS ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੇ ਇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਬੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈਵ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਟੂ ਵਰਕ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਵਿਦ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਮ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਯੂਸਫ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਾਰੀਖ ਕੰਬੋਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਖ ਕੰਬੋਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ
ਬੋਲ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ that will be a good idea। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ US ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ US 'ਚ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਏ SAP ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਸਕ ਐਂਡ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵਿੱਚ ਟੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ, ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਡਿਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਅਖਤਰ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਓ ਤੇ ਹਾਜੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਜੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕੰਬੋਹ साहब फ्रॉम सिंध, अंजुमन कंबोहान पाकिस्तान से। जनाब हाजी इब्राहिम साहब। बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी सनात भाई। मेरी तमाम बिरादरी के मोअज़्ज़िज़ीन जो अज मीटिंग मौजूद ने, सब नू आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अजीम सलाम साहब, एक ने जवाब देता, सारा ਦਾ ਆ ਗਿਆ। नाज़ीम साहब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲੋ। ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ? ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। नहीं, मेरी गुजारिश ये है कि मैं अपने डॉक्टर उस्मान साहब और नसीर एडवोकेट साहब और खास कर खालिद परवेज साहब, इन्हां दी गल नूं थोड़ा जिहा अगे वधा दी, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा। अज तुहाडी मीटिंग दे विच माशाअल्लाह कंबो काफी ज्यादा मौजूद ने। हाउस फुल है। मैं इत्थे हसनात भाई थोड़ी शागिर्दी च और साडे मोहतरम अल्लाह यरहम अरबी च कहंदे अल्लाह ताला मगफरत फरमाए, चौधरी ज़मीर साहब उन्हां दी उस्तादी च जो कुछ असीं सिੱਖਿਆ कि सब तो पहला तो असीं कंबो कहलवाइए, सब तो पहला असीं कंबो कहलवाइए। उस तो बाद दूसरा दर्जा, जिवें चौधरी साहब अगर मौजूद होण और तुसीं भी नोट फरमा लो कि जिन्ने भी साडे अफसरान ने अंजुमन कंबोहां पाकिस्तान के मरकजी सदर, जो उन्हां दी नॉलेज दे अंदर कंबो ऑफिसर है पूरे पाकिस्तान च, जो उन्हां दी नॉलेज 2 ने 4 ने 20 ने 50 ने, जो भी उन्हां कोले है, उन्हां नूं हुक्मनामा जारी करन कि जनाब आला रिटायरमेंट होने तो बाद कंबोआं दी मुहब्बत पैदा ना करो, ऑन ड्यूटी सानू रिपोर्ट दिओ तुसीं किन्ने कंबो भर्ती कराए ने। एक पीएन तो लैके, एक ड्राइवर तो लैके, चलो छोड़ो जी कमीशन दे विच तां बाद दियां गल्लां ने, जिहड़ी ABC दियां गल्लां ने कि साडी कौम कंबो दा बंदा कम अज कम उस मुकाम ते पहुंचण वास्ते, साडे वालिद साहब ने सानू अगर 76 मैट्रिक करवा लिया सी तां अज असीं इस मुकाम ते हां। ताज़ीम साहब नूं उन्हां दे वालिदैन ने अगर इत्थे पढ़ा लिया सी, हसनात साहब नूं अगर उन्हां दे वालिदैन ने पढ़ा लिया सी, अज इस मुकाम ते। बराए मेहरबानी मेरी अंजुमन कंबोहां पाकिस्तान के प्रेजिडेंट मोहतरम चौधरी साहब को यही गुजारिश है कि हर बंदे नूं हुक्मनामा जारी फरमाउण कि जो भी कंबो जिस पोस्ट से भी है वो रिपोर्ट देवे कि उन्होंने गुज़िश्ता 2 साल 5 साल 20 साल
25 साल की सर्विस 40 साल की सर्विस इन्हें कंबो भर्ती कराया ने। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी आखिर जी पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ तजीम साहब, जी जी वो डिस्कनेक्ट हो गया था मसला। ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ सर। तो अभी वो बात कर रहे थे मेरे साथ खालिद परवेज साहब, जी खालिद परवेज साहब फ्रॉम अमेरिका, हाँ और उस हाँ तो बाद गल की है वो कर रहे उस तो थे बाद मेरे इब्राहिम साथ, तो वो रास्ते में डिस्कनेक्ट हो गया तो उनकी पूरी बात जो है वो मेरे तक पहुंच नहीं सकी। तो बहरहाल मैं फिर उनको सुन लूंगा किसी वक्त। तो मेरी वैसे उनसे गुजारिश, जब वो बोल रहे थे मेरा दिल कर रहा था कि इनके साथ बिल मुशाफा बैठ के बातें होना जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे जो लोग हैं पढ़े लिखे और जिनके पास कोई फहम होता है बात करने का और कोई प्रोग्राम होता है, उनसे बैठ के गाइडलाइन जरूर लेनी चाहिए। कि अब मैं दावत दूंगा चौधरी मोहम्मद अमीन कंबोज शेखपुरा से। जनाब चौधरी मोहम्मद अमीन कंबोज साहब। ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। जी ये देखें, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है और इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि शेखुपुरा के अंदर तो यकीनन एक बहुत अच्छा काम हो सकता है और वो वही होगा जहाँ तंजीम बनी होगी और उसमें आपस की यूनिफिकेशन होगी। असल बात ये है कि पहले आपने किसी अहल आदमी को जो इस लाइन में आगे बढ़ सके उसको उसका इंतखाब आज खुद करना है और फिर उसकी कैपेबिलिटी ये हो कि वो इलेक्शन में आगे बढ़ना भी जानता हो, तो उसको तो सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर होना चाहिए। सब एक बात पे मुत्तफिक हो कि भाई ये हमारा आगे क्या सिस्टम आता है, पाकिस्तान के हालात क्या बन रहे हैं, क्या आ रही है, तो जैसे कोई सिस्टम अगर यही सिस्टम रहा तो फिर इसके मुताबिक कोई फैसला करेंगे। अगर कोई दूसरा कोई सिस्टम आया तो बैठ के फिर इंशाल्लाह आपकी मुशावरत के साथ कोई ऐसा काम करेंगे। मैं दावत दूंगा चौधरी नईम और मैं दावत दूंगा कि वो जनाब नईम कंबोज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चौधरी अख्तर रसूल साहब, तजीम साहब, हसनात साहब और तमाम दोस्तों जो आप सुन रहे हैं सबको मेरा सलाम। जी मैं अपना तारुफ पहली मीटिंग जो आपने 6 मीटिंगें की हैं उसकी पहली मीटिंग में मैं था और आज मुझे इंतज़ार था चौधरी अख्तर रसूल साहब का नाम देखा। मैंने कहा जी चौधरी साहब पुराने हमारे कायद हैं, लीडर हैं, तो मैंने स्पेशली इंतज़ार कर रहा था कि 10:30 बजे और मैं चौधरी साहब से की बात सुन सकूं। एक वो पहली मीटिंग में ये एक बात तय हुई थी कि हमें जो है ना अपने बच्चों को साथ रखना चाहिए अपने इन मीटिंग्स में जो अभी कर रहे हैं इस कोरोना वायरस के दौर में है। तो उस मेरा बेटा अमाद नईम मेरे साथ है और ये इलेक्ट्रिक इंजीनियर है और मेरी जो फैक्ट्री है उसको ये रन कर रहा है। और मेरा तारुफ तो नईम जी और मैं NTN के नाम से पंखे, हीटर और गैस हीटर वगैरह की फैक्ट्री है बंद रोड पे, वो मैं चला रहा हूँ। और बंद रोड इंडस्ट्री एसोसिएशन का भी सरबराह हूँ। वहाँ पे तकरीबन 400 के करीब हमारी फैक्ट्री है जिनका मैं सरबराह हूँ। तो मेरी गुजारिश है अपना चौधरी साहब आपसे कि आपने अंजुमन कमोहा लाहौर बनाई काफ़ी अर्सा पहले, उसके जो सदर और जनरल सेक्रेटरी बड़े एक्टिव लोग हैं, मगर क्या वजह है कि जब वो अपनी एक्टिविटी चौधरी अमजद साहब हैं उनकी एक्टिविटी बहुत अच्छी है चैम्बर्स के हवाले से, जहाँ पे वो सदर हैं उसके हवाले से जो उनका जो है डाइपोर्ट पे, मगर और इसी तरह चिरकी साहब हैं वो बड़े एक्टिव हैं अपने बाजार में या ताजरान के हवाले से बहुत बड़ा अच्छा नाम है। जब वो बरादरी की मीटिंग्स होती हैं तो बरादरी के हवाले से कोई एक्टिविटी उनकी नजर नहीं आती।
تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ان کو ایکٹیو کریں اور موٹیویٹ کریں کہ کیا وجہ ہے پچھلے 15 سال سے وہ صدر ہیں, کوئی لاہور میں میٹنگز نہیں کرتے وہ. تو اس سے گزارش ہے کہ اتنے اچھے بندے ہیں ہمارے پاس ہونے کے باوجود وہ ادھر توجہ کیوں نہیں ہے. اور دوسری گزارش کی صاحب آپ سے یہ ہے کہ جب آپ چودھری امین صاحب کے بعد صدر منتخب آپ کو لوگوں نے خواہش کی, اور میں اس ٹیم میں شامل تھا جنہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ قوم کی جو ہے نا صدارت سنبھالیں, مگر وہ جتنا آپ کو میں نے 85 سے پولیٹیکلی ایکٹیو دیکھا ہے, چودھری منیر صاحب آپ کے ساتھ تھے, اس طرح ایکٹیویٹی برادری کے حوالے سے نظر نہیں آئی. تو گزارش یہ ہے, عمر کا تقاضا بھی ہے, آپ بھی ماشاءاللہ کافی عمر ہے, ہم بھی بوڑھے ہو رہے ہیں اب, تو شاید عمر کا بھی تقاضا ہے, تو ینگسٹر ٹیم کو ساتھ لیں اور جو ہے نا اپنی ایکٹیویٹیز وہ جو آپ کی تھی جس کی وجہ سے ہم سب نے آپ کی ریکویسٹ کی, آپ کو جا کے بڑی مشکل سے بنایا, مگر وہ ہمیں یہاں وہ سروس ملنی چاہیے. بہت شکریہ. جی نعیم صاحب. جی ماشاءاللہ نعیم صاحب ہمارے پرانے سیاسی جدوجہد کرنے والے ورکر بھی ہیں, اور انہوں نے بلدیات کے الیکشن بھی جیتے ہوئے ہیں, اور یہ کئی مرتبہ کونسلر اور چیئرمین بھی بنے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ایک سیاسی آدمی کوئی مجھ سے سوال کرے, تو جہاں تک تعلق ہے لاہور کی جو باڈی ہے اس کے اندر معاملات کا, وہ ہماری فکر میں موجود ہے, اور انشاءاللہ لاہور کے لوگ ایکٹیو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ملتے رہتے ہیں, لیکن جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو انشاءاللہ تعالی بڑے آسان طریقے سے اس کو حل کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو دوسری بات آپ نے جو یہ کہی ہے کہ بھئی ہم اس کو اس طریقے سے آرگنائز کریں, تو یقیناً ہم نے پچھلے 6-8 ماہ سے اسی طریقے سے ہی کام شروع کیا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں نا, پنجاب کے اندر کوئی ایک شہر کی بھی تنظیم مکمل نہیں تھی, ہم نے اللہ کی مہربانی سے 26 اضلاع مکمل کر لی ہیں, اور آگے بھی انشاءاللہ جو 10-12 باقی ہیں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی یہ اپنی کارروائی جلد کر رہے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ سندھ کے لوگوں کا حال بھی ہم ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں, اور یہ انشاءاللہ رابطے سے ہی میل ملاقات سے ہی جب تک ہم ملتے رہیں گے ایسی باتیں آئیں گی سامنے, اور اس کے اوپر انشاءاللہ مل کر آپ کی اصل طاقت تو آپ کی ہے, اب نوجوانوں نے ہی کام کرنا ہے, تو نوجوانوں نے ہی آگے بڑھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان جو ہے وہ ہماری طاقت اصل نوجوان ہے. اب آپ کے جو جیسا آپ نے اشارہ کیا ہے کہ آپ کے جو بیٹے ہیں, بچے ہیں, اس طرح ہم جو 50 سال 60 سال کی عمر کے لوگ پہنچ گئے, انہوں نے اپنا زندگی میں بڑا کریکٹر ایک رول ادا کیا ہوا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ چودھری اشرف صاحب بھی یہاں آئے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک رول انہوں نے بھی ادا کیا ہوا, اس طرح ہمارے بزرگوں نے کیا. اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی اس طاقت کو اپنے بچوں میں کنورٹ کر دیں, اور وہ بچے جو درد دل ان کے دل میں برادری کا ہوگا, کیونکہ انہوں نے ان کے والدین نے اس کے اوپر عمر صرف کی ہوگی. تو میری بھی پرائورٹی یہی ہوگی کہ نوجوان کو گلے لگا کر نوجوانوں کو آگے لے کے جائیں گے. شکریہ جی. اب ایک نوجوان ہیں آج ہمارے درمیان, چودھری زین العابدین کمبو. جناب گزارش ہے کہ وہ اپنا تعارف کرائیں اور اس کے بعد سوال. زین العابدین. جی السلام علیکم, میرا نام زین العابدین ہے. اختر صاحب سے آپ سے ملاقات ہوئی تھی ریلوے روڈ پہ ایک کھوج کی, آپ نے ایک قصے بھی دیا. تھوڑی آواز کٹ آ رہی ہے, کسی اور نو دے دو. جی بولو. سر میں عرض کر رہا ہوں, زین العابدین میرا نام ہے, میں 85 لاہور کا رہائشی. میں اسٹوڈنٹ ہوں, بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس سیمسٹر 9 کا فائنل سیمسٹر کا, اور ہمارا یہاں پہ ریلوے روڈ پہ ہی کام ہے چودھری ٹولس کے نام سے. ہم کٹنگ ڈسٹنگ وغیرہ ہارڈ ویئر وغیرہ آئٹم سیل کرتے ہیں. تو بس یہی ہے. اور لاہور جی آگے چلے جی. جی آگے چلے جی.
ਜਿਸ ਜੋ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ जी जैनुल आबदीन साहब, जी जी जैनुल आबदीन साहब की आवाज जो है वो प्रॉब्लम क्लियर किसी नहीं भी है। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ सना साहब किसी और को दे दो, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ इनकी ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸਲਾਮਦੀਨ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। उस्ताद मोहतरम बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सब तो पहले तो मैं अपनी कौम के लीडर चौधरी अख्तर रसूल साहब नूं सलूट पेश करना वा कि जिन्होंने अपना कीमती टाइम कौम दे नज़र किया। अल्लाह करे कि ये टाइम जिहड़ा है वे फैज़ावर साबित होए। उस तो बाद मैं नाम तो इस्लामदीन कंबो हाँ, मरीद के दे करीब रावी रियान दे विच मेरी रिहाइश है वे। मरीद के कंबो इतिहाद वेलफेयर फाउंडेशन का मैं सीनियर नैब सदर हाँ। इहदे नाल नाल सिटी मरीद के प्रेस क्लब का मैं सीनियर वाइस चेयरमैन हाँ। कंबो कौम का खादम हाँ। बस इन्ना ही मेरा जिक्र है। बाकी नंबर मेरा है वे 0333 42 34 162। सर साड़ी इन्नी औकात नहीं कि असी चौधरी साहब अगे कोई सवाल कर सकीए, पर मगर कुछ वक्त की जरूरियात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिहड़े करन तो बगैर रह नहीं सकते। चौधरी साहब मैं थोड़ा जिहा अर्ज करदा जावां कि पिछले दिनी हाजी ज़ाहिद कंबोज साहब इसी प्रोग्राम मीटिंग च बैठे हुए सन। वो सदर ने अंजुमन कंबोहा बहावल नगर के जिले सदर ने वो फरमा रहे सन कि इस मुश्किल दौर दे विच जदों कि हर फर्द, हर कौम, हर तबका अपने लोगों की किसी न किसी तरह अमदाद कर रहा है। मैनू अंजुमन कंबोहा पाकिस्तान की नजर नहीं आ रही। ये तो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात सन। उस तो बाद दूसरी चीज़ है, इत्थे हाफिज अनायतुल्ला साहब बैठे हुए हैं। वो भी एक पिछले प्रोग्राम च कह रहे सन कि माशाअल्लाह साढ़े चौधरी लईक साहब की क्यादत दे विच पिछले दिनी जिहड़ा प्रोग्राम करवाया है वो डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम नहीं सी, वो अंजुमन कंबोहा पंजाब का प्रोग्राम सी, जिहड़ा कि अंजुमन कंबोहा पंजाब नूं कराउणा चाहीदा सी। उस तो बाद साढ़े कराची तो एक शिकवा है सी जनाब काजी मोहम्मद असलम साहब का। वो कह रहे सन कि 4 साल तो असी एक नोटिफिकेशन का जिक्र कर रहे हैं, इज्जत मार जनाब मरकजी सदर चौधरी अख्तर रसूल साहब के अगे साडा पता नहीं क्यों नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा। चौधरी साहब मैं भी इस चीज को अगे बताउंदे हां मुश्किल दौर दे विच अंजुमन कंबोहा पाकिस्तान मरकजी तौर पर कोई फाल किरदार अदा नहीं कर रही कि असी हर जिले दे विच जिथे कि 26 साडियां जिले इंतजामी। जी चोई साहब अगे जवाब दो। बहुत शुक्रिया जी चोई साहब तुसी जी इस्लामुद्दीन साहब बड़े पुराने हमारे अंजुमन कंबोहा ने पाकिस्तान के वो एक जबरदस्त का साथी हैं और मैं ये समझता हूँ कि इनकी राय जो है वो हमेशा मुकद्दम रही है और मुकद्दम रहनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो हमेशा बात होती है वो एक क्रिटिसिज्म से शुरू होकर हेल्दी क्रिटिसिज्म से आगे बढ़ती है। और हम लोग काफ़ी देर से इनएक्टिव रहे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस्लामुद्दीन कंबोज साहब ने वो इशरे की मीटिंग में एक ज़बरदस्त तकरीर की जिससे सबको मोटिवेट किया, हमें भी इन्होंने मोटिवेट किया और हम इनके मशकूर हैं। फिर आपने देखा, फिर अब हमने सारे देखते देखते सारे इजला की तंजीम साजी भी की, लोगों को अपना ही बनाया। तो ये मरहले पे जब गुजर जाते हैं तो बाकी जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो भी इंशाल्लाह पूरी होंगी। लेकिन मेरी एक आप सब से गुजारिश ये है कि वो तंजीम कभी कामयाब नहीं हो सकती जो डिसिप्लिन के तहत नहीं चलती। ये मेरे ऊपर भी लागू है, ये हर के ऊपर लागू है कि वो डिसिप्लिन को कायम रखें। जाती गुस्सा और जाती चीज़ें आपकी अपनी, लेकिन वो आप कभी भी उसको बरादरी के ऊपर फौकियत ना दें। जब आप अपने आप को कुर्बान कर देंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
हदीस मुबारक भी है कि अगर कोई बंदा अपनी अना को कुर्बान कर दे और वो उसका हक बनता हो, लेकिन उसे वो सुलह के लिए, अमन के लिए, मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए 2 कदम पीछे हटता है, तो वो अगर फील करता है कि उसकी इज्जत वकार में कमी आई है, तो रोज़े महशर वो मुझसे ले ले। तो ये एक सबक है जो हम सबको याद रखना है। हमेशा आजिज़ी को फल मिला है, इनकिसारी को मिला है, और अल्लाह ताला ने कभी किसी गरूर वाले को पसंद नहीं किया। लिहाजा हम सब की ये ड्यूटी है कि हम अल्लाह के आगे आजिज़ी से काम करें। ये तजावीज़ जो है, बाकी नोटिफिकेशन की बात है, वो नोटिफिकेशन जिनके अप्रूव किए हुए हैं वो इंशाल्लाह अगर उन्हें मैं चेक करूंगा, नहीं मिले तो इंशाल्लाह उनको मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। अब मैं दावत दूंगा हाजी हबीब कबो साहब फ्रॉम कराची। जनाब हाजी साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। हाजी हबीब कबो कराची। मेरी हेलो हेलो जी, आ रही है आवाज? हाँ जी, ठीक है। पहले तो सारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, चौधरी साहब आवाज आ रही नहीं? आ रही है, आ रही है जी। अच्छा, मैं चौधरी साहब ने पहले तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, उस तो बाद चौधरी साहब सारियां गल्लां तकरीबन कर चुके ने, क्योंकि उसकी वजह है कि पहले तो सब दोस्तों ने इस चीज का मोटिवेट करो कि बर्दाश्त जरूरी है, क्योंकि असं जिथे भी मीटिंग की है, जिथे बैठे बंदे अपने अपनी फिक्र लैके ते उड़ जाते हैं। तो मेहरबानी ये करो कि सारे इस चीज का दसो कि जिथे दोस्तों च मामला होंगे ने बर्दाश्त की जरूरत होंगी है, ठीक है ना। तो उस तो बाद जनाब चौधरी साहब तुहानू माशाल्लाह अज देख के तो बहुत खुशी हुई। इस तरह की मीटिंग रोज हर हफ्ते चलती रहनी चाहिए है। बाकी मैं दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज्यादा टाइम ना लो क्योंकि काफी टाइम हो गया, ठीक है ना। थोड़ा टाइम सारे दो, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। कि अब मैं दावत दूंगा चौधरी मोहम्मद अशरफ कंबो साहब को कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। चौधरी मोहम्मद अशरफ कंबो फ्रॉम इचरा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। आवाज आ रही मेरी? जी आवाज आ रही मेरी? जी आ रही जो हाँ जी। वो मैं ना ताजीम साहब दे रेफरेंस नाल वो एक पिछली दफा मीटिंग सुलेमान साहब ने डिमांड की थी कि कोई कंबो कौम दी इन्नी 2 सफे उत्ते डिटेल नाल मिल जाए इंफॉर्मेशन तारीख दे बारे, जो मैं 3 सफियां दी लिखी है जो कंपोज करनी देती है, जो मैं व्हाट्सएप ते ताजीम साहब नू भेज दियांगा। वो मतलब का अपना सुलेमान साहब नू भेज देन। पिछली मीटिंग उन्होंने डिमांड की थी ते वो बाकी बीबी फाउंडेशन के हवाले नाल पहले ही जिक्र कर चुके हैं बड़ी अच्छी तरह कि असी यतीम बच्चे जिहड़े ने प्राइमरी तो मैट्रिक तक उन्होंने एजुकेशन सपोर्ट फंड मुहैया कर रहे हैं ते हर डिस्ट्रिक्ट तो असी मंगे ने लिस्टां ते जिस इथों सानू आईयां ने उत्थों तो असी पैसे भेज ते बाकी जेड़े वो मैं खालद साहब ने डिस्ट्रिक्ट नू कोआर्डिनेट करो ते असी वो 1000 बच्चे दा अरेंजमेंट कीता। ओदा फाइनेंसर चौधरी मकसूद है इंजीनियर फ्रॉम यूएसए। हाँ जी। ते उन्होंने खती रकम उस सिलसिले च तकरीबन 30 लाख रुपया रखी है ते मुताबिक वो जरूर पिछले साल भी उन्होंने मुहैया की थी 15 लाख बदू पिछले साल 7.5 लाख की ते बहरहाल बड़े शफाफ तरीके नाल कंबो बच्चों नू जेड़े वाकई ही हकदार ने पहली प्रायोरिटी असी रखी है वो बच्चे जेड़े मतलब है कि यतीम बच्चे ने। हाँ जी। उस तो बाद फिर जेड़े कोई मतलब है कि थोड़े इस काबल ने कि उन्होंने दी मतलब सपोर्ट होनी चाहिए एजुकेशन सपोर्ट। दूसरा एक ब्लड डोनर ग्रुप असी बनाया, एक पाकिस्तान ब्लड डोनर। एक पाकिस्तान मतलब अंजुम कुमार पाकिस्तानी
ਤੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ जी तजीम साहब, चौधरी अशरफ तो बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ा जिंदगी में इन्होंने हमेशा अपनी बरादरी के लिए, ये सेक्रेटरी जनरल भी रहे पाकिस्तान अंजुमन पाकिस्तान कम्बोहान के, और उसके अलावा ये कोई एक ऐसी मीटिंग में नहीं है कि चाहे इनकी सेहत इजाज़त दे ना दे, लेकिन इन्होंने कभी मिस नहीं की और इसमें हर काम में एक्टिव रहते हैं। और अभी भी जो ये अमेरिका के दोस्त मकसूद साहब से मिलके ये एक सिलसिला शुरू किया हुआ है इन्होंने, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इस किस्म के जो रफाई काम है उससे आपकी लोगों में इज्जत भी बढ़ती है, और ये सब जो है वो हमारा हिस्सा है। ज़रूरी नहीं है कि एक तंजीम ही उसको करती रहे, बल्कि जो मुखैर हज़रात हैं वो अपने इर्द गिर्द देखें, जो इर्द गिर्द उनके नज़दीक हैं, जो हमारे पास जिनका डेटा नहीं भी होता, उसको भी लुक आफ्टर करें। मैं तो इस साल की एफर्ट को खराज तस्लीम पेश करता हूँ, और इनके हमेशा बड़ा पॉजिटिव, बड़ा ही शानदार रोल है इनकी ज़िंदगी का, और अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और ये अंजुमन पाकिस्तान कम्बोहान की ये बड़ी बहार है। अब मैं तजीम साहब के हवाले इनवाइट करता हूँ, अगर कोई दोस्त रह गए हैं तो उनको आप इनवाइट करें। मेरे पास जो नाम थे वो सारे मुकम्मल हो गए हैं। जनाब तजीम साहब। बहुत शुक्रिया हसनात भाई। मैं देख रहा हूँ नसीम अहमद साहब हैं, इनका नाम है, मैंने माइक खोल दिया। नसीम अहमद साहब, अब आपकी बारी। कराची से नसीम अहमद कम्बोह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही है सर? जी आ रही, बिल्कुल आ रही। हाँ। तो मेरा नाम नसीम अहमद कम्बोह है, मेरा प्रदेश हलानी डिस्ट्रिक्ट नुशहर फरोज पुराना नवाबशाह से आया है, मगर मैं 38 साल से कराची में स्टेट बैंक में जॉब करता हूँ एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, और मेरा अंजुमन फलाह कम्बोह बरादरी का फिनांस सेक्रेटरी और एडमिन सोशल मीडिया ग्रुप अंजुमन फलाह कम्बोह बरादरी नसीम अहमद कम्बोह। मेरा नंबर नोट कर लें बेशक, 0345 289 7665। चौधरी साहब, मैं सबसे पहले तो आपको, तजीम साहब को और हसनात साहब को, जो वो इंटरनेशनल से होता हुआ कम्बोह टीवी और उसके बाद अब जोम मीटिंग जो यहाँ तक हम पहुँच गए, अल्लाह ताला आप सबको जो ना और हिम्मत और बहादुरी अता फरमाए, आपको मुबारक हो। उसके साथ साथ चौधरी अख्तर रसूल साहब, जिसको मैं समझता हूँ, मैं 98 से जो देखता हूँ आ रहा हूँ, जो महरापुर में कन्वेंशन हुआ था, ऑल पाकिस्तान कम्बोह कन्वेंशन, यहाँ चौधरी साहब का पैगाम नशर किया गया था। चौधरी साहब खुद नहीं आए थे, तो शायद याद होगा, उसमें बहुत सारे लोग थे, लाहौर के जमीर साहब थे, यूसुफ हसन साहब थे, और बहुत सारे लोग थे, अमीन साहब थे। तो अल्लाह ताला आपको जो है ना, आपके मैच भी हमने देखे हैं, बहुत देखे हैं, तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपको जो ना कौम की खिदमत करने की। मगर कुछ बातें हैं आपसे, हैं तो हम अदना से, मगर मैं समझूं, मैं कहूँगा ज़रूर जो ना आपको, तो आपका तो बहुत वास्ता है, पुराना रहा है अंजुमन कम्बोह पाकिस्तान के नाम से। बहुत लोग सिंध में, मैं सुनता हूँ, बगल में छुपाए घूमते हैं नायब सदर के लेटर जो ना, कुछ पुराने शायद आपको याद होंगे, इलियास कम्बोह साहब हैं, अफजल साहब हैं, और भी हैं। अब उसके बाद नए लोग आ गए हैं, अंजुमन फलाह कम्बोह ने बच्चा भी दे दिया है, और एक और जो ना अंजुमन भी है, माशाल्लाह बच्चा जवान हो गया, अब जो है ना सबको पता है, आप उनसे भी राब्ते में। मगर आपने कभी मुड़ के ये नहीं पूछा कि वो पुराने लोग जो आपके थे, जिनसे आपकी खतो किताबत होती थी, जिनको आप ट्राफियां देते थे, वो कहाँ पे हैं। तो इसके साथ साथ और मैं एक और मेरी तजवीज़ है कि अंजुमन कम्बोह पाकिस्तान आया लाहौर तक ही है या उसके बाद बाहर भी आती है। तो अगर अंजुमन कम्बोह पाकिस्तान है तो इसका कोई ना कोई सब दफ्तर वगैरह, कोई सखर में है, कोई रहीम जारका में हो, कोई मुल्तान में आप कह लें, ताकि जो बाहर से, यहाँ से सिंध से लोग आए, वो भी उनको थोड़ी आसानी हो, वहाँ भी मीटिंग की जा सके।
जी चौधरी साहब। जी चौधरी साहब। जी वसीम साहब, एक तो बड़ी खुशी हुई आप माशाल्लाह कराची में मुकीम हैं और आप ने जिक्र किया वहाँ की सिंध की एक्टिविटी का और उसमें हमारी शिरकत का। मैं कई मरतबा उधर गया हूँ, उधर उनके सालाना इज्तिमा के ऊपर और उनकी एक्टिविटी को सराह कर आया हूँ। और यकीनन दस्तोबाजू जो होते हैं वो हमारे विंग्स हैं, एक जिस तरह सिंध है इस तरह पंजाब है, पंजाब में भी अब काम कर रही है। और ये पंजाब को भी जो मुतहर्रिक किया है वो अंजुमन कम्बोहा ने पाकिस्तान ने किया है। और मैं मशकूर हूँ जनाब यकूब साहब का और जनाब खालिद महमूद साहब का कि उन्होंने इसमें बड़ी मेहनत की है और दूसरे दोस्तों ने भी इसमें बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है और कर रहे हैं। और ये इंशाल्लाह अगले 3-4-5 माह में बाकी भी मामला जाएंगे इंशाल्लाह। आप फिक्र ना करें, जो भी आपकी तजावीज़ हो वो आप हमारा दफ्तर मौजूद है 6A जेल रोड मजांग चुंगी लाहौर। ये आप इसको उसके अंदर एक लेटर डाल सकते हैं अपनी तजावीज़ का, जो हमारे फौरी मिल जाएगा। हम इंशाल्लाह आपकी तजावीज़ को हमेशा जो काबिल अमल होंगी उनको इंशाल्लाह करेंगे। जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। आखिर में जी हमारे पास एक जोशीले कम्बो हैं, फारूक इस्लाम कम्बो। फारूक साहब आप वोट ऑफ थैंक्स, आप शुक्रिया अदा करेंगे इस सारी मीटिंग को सम अप करने के लिए। फारूक अपना माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इस मीटिंग में शरीक तमाम कम्बो भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा तारुफ फारूक इस्लाम कम्बो इस्लाम मुरीद के मीडिया से मेरा लिंक है। मुकामी प्रेस क्लब का नायब सदर हूँ। एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए खिदमत पर अंजाम दे रहा हूँ। और कम्बो कौम की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे मौजूद है तंजीम कम्बो यूथ फाउंडेशन, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और सबसे पहले तज़ीम कम्बो साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कितनी अच्छी महफिल सजाई, तमाम दोस्तों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। हम तमाम साथी आपके मशकूर हैं। और फ़खरे कौम कम्बो जनाब इज़्ज़त माब रसूल कम्बो साहब का भी शुक्रिया कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और तमाम साथियों को टाइम दिया। सदर जनाब अख्तर रसूल कम्बो साहब से गुजारिश है कि जहाँ पंजाब समेत तंजीम साजी का सिलसिला जारी है तो इस तंजीम साजी में नौजवानों को भी साथ शामिल किया जाए, क्योंकि नौजवानों के बगैर कोई भी तंजीम कामयाबी से इम्कनात नहीं हो सकती। तंजीम साजी में नौजवानों को उनका हिस्सा दिया जाए और नौजवानों की भी तंजीम साजी की जाए ताकि अंजुमन कम्बोहा पंजाब बेहतर तरीके से काम कर सके। और इसके साथ साथ ग्रुप में कहा गया कि 26 अजला में तंजीम साजी हो चुकी है। कोरोना एक ऐसी वबा है जिसमें पूरा मुल्क ही मुतासिर है। इस मौके पर तमाम तंजीमें, तमाम कौमें अपने अपने लोगों की हेल्प कर रही हैं, लेकिन किसी भी जगह पर अंजुमन कम्बोहा पंजाब या कोई भी मुकामी तंजीम इस हवाले से एक्टिव नजर नहीं आई, ना सोशल मीडिया पर और ना ही अखबारात में। इस हवाले से भी काम करने की जरूरत है। तमाम साथियों का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहब। क्लोजिंग ठीक है रहीम साहब, आज की आपकी और जो सारी महफिल है मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। दोस्तों ने बड़ी मोहब्बत का, बड़ी प्यार से इसको अपनी तजावीज़ भी दी हैं और अपने जज्बात और एहसासात का भी इजहार किया है। तो ये यकीनन जो हमारी अंजुमन कम्बोहान के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के, प्रोविंस लेवल के और जो पाकिस्तान लेवल के जो दोस्त हैं जब बोलते हैं तो वो यकीनन अपनी बरादरी की बेहतरी के लिए बोलते हैं और उसकी बेहतरी चाहते हैं। इसको और ये हमारे लिए गाइडलाइन होती है और इसको इंशाल्लाह ताला हम उसी अंदाज से लेंगे। हमारे पास आज के तमाम दोस्तों का मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो अल्फाज मेरे लिए बोले हैं, अल्लाह ताला उनको खुश खुरम रखे और कोरोना से और दूसरी आफतों से हमेशा बचा के रखे और रमज़ान की सारी बरकतें जो हैं वो अल्लाह ताला इनको अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। चौधरी अख्तर रसूल साहब जी
जी इस आज की महफिल को अब मेरा ख्याल है सारे लोग हो गए हैं। एक मेरा ख्याल है हमारे पास रह गए हैं असलम कंबोज साहब, काजी असलम साहब। इनसे मैं दुआ कराता हूं क्योंकि वोट ऑफ शुक्रिया के बाद फिर एक दुआ रहती है, तो दुआ के लिए मैं इनको कहूँगा काजी असलम साहब। उससे पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ कि हमारी ये जो मीटिंग है 1.5 घंटे की मीटिंग है, ये बकायदा बड़ी अच्छे तरीके से ये इसको हमने कंटेस्ट किया। मुस्बत चीजें होनी चाहिए। आप हम शुक्र अदा करते हैं कि हम सब लोग एक दूसरे के साथ बैठे हैं। और लीडरान को मैं हर बुध को इस चैनल पे आपके मरकजी लीडरान को भी लेके आऊंगा, डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर अल्लाह ने मौका दिया है तो पॉजिटिव चीजें करें। हाँ जी। और ये महफिल, इसकी रिकॉर्डिंग भी आप देखना, वो आपको पहुंच जाएगी। और अगली मीटिंग के लिए अच्छी तैयारी करके आएंगे। तो इस बात के साथ कि मेरी कौम के लोगों, मेरी बिरादरी के लोगों के सोच को बदलो, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। हम अपनी सोच को बदलें तो सितारे बदल जाएंगे, और नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। हमें जरूरत है अब अपनी नजरों को बदलो। और नई यूथ और नई जनरेशन हमारे साथ मिल गई आके। ये चीजें पहले कभी नहीं हुआ करती थी। आज हम खुल्लम खुल्ला कहते हैं तो नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, और रुख को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। तो मैं इसके साथ दुआ के लिए काजी असलम साहब को कहता हूँ। और मैं सलीम अख्तर साहब मुझे अब नजर आए हैं, लेकिन जो अटेंड करने के बाद गायब हो जाते हैं ना जी, वो अब ये है कि इनको अगली मीटिंग में हम लेंगे। काजी असलम साहब दुआ के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मौलवी नहीं जे हैगा ते मैनू खाली दुआ वास्ते गल सुनो, दुआ वास्ते रखिया सी आखिरी मेरा टाइम। मैं अज तुसी हसरात साहब नू ना लिख के नहीं दिते, इस वास्ते मिस्टेक हो गई है। छठी मीटिंग है, असी तुहाडे नाल आ। तुसी हाजी इब्राहिम साहब दी गल दा जवाब भी नहीं दवाया अख्तर रसूल साहब कोलों, और मेरी गलबात जिहड़ी आनी सी वो भी नहीं हो सकी। सर वो कहते ना उम्मीद ते रवो। अख्तर रसूल साहब नहीं, अख्तर रसूल साहब चले गए ने। नहीं ਹੁਣ ਫਿਰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਫਟਾਫਟ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਅਖਤਰ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੌਮ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ। देखो ना ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, 38 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਰਾਚੀ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੌਮ ਲਈ। ਔਰ ਅੱਜ 6.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਖਤਰ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਚਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਖਤਰ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਦਾ, ਐਜ਼ ਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਇਬ ਸਦਰ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਸ਼ੀਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਡੇ ਕੰਬੋ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਾਚੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਨਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ।
अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शफ़ाउ का शफ़ा ला युगादिरु सक़मा या काज़ियल हाजात इक़ज़ि हाजातिना व हाजातल मुस्लिमीन। या अल्लाह जिहड़ी कोरोना दी बीमारी आई हुई है और बड़ी टेंशन है और सारे लोग घरां दे विच दब के बैठे हुए ने, कारोबार बंद ने, या अल्लाह इस बला नूं साडे तो टाल दे। या अल्लाह आमीन। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਬਲਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਾਲ ਕੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ। या मेरे मौला अल्लाह आमीन। ताला, या अल्लाह तेरे अगे हथ जोड़ के दुआ करने आ, मौला तेरे अगे इल्तजामा करने आ कि सानू जिस बीमारी ने इस टाइम घेरिया होया है और दीगर जितनियां बीमारियां जितने बीमार ने, अल्लाह ताला सारे नू शिफाए कामला आजला नसीब फरमाए और आमीन। अल्लाह ताला हमारे साडे उत्ते रहम फरमाए। अल्लाह ताला इत्तेहाद कायम करन दी तौफीक अता फरमाए, कबो बरादरी च प्यार मोहब्बत पैदा करे और वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिक या माशाल्लाह जी, बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया काजी साहब ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਸ਼ੀਰ ਕੰਬੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਬੋ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅੰਜਮਨ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਹਸਨਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਬਤੇ ਸਟਾਰਟ ਲਏ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੀ ਔਰ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। सही बात। सब रिकॉर्डिंग बंद कर दियो जरा। अच्छा हाँ, रिकॉर्डिंग पहले बंद